Namaste Bharat. Salam UAE. Liberty and equality will be best attained when all persons alike share in government to the utmost. With these words from Aristotle, let us begin this episode of Pious Talk. लोकतंत्र की मजबूती यानी अभिव्यक्ति की मजबूती, अभिव्यक्ति की स्पष्टता। इसी मजबूती और स्पष्टता के वैचारिक मंथन के लिए उचित पटल की आवश्यकता होती है और इसी पटल का नाम है पाइस टॉक। Today is the 24th of June 2023 and we, Akshita and Aditi, are delighted to host this 9th episode of Pious Talk. Our valued guest for today is Dr. Mohd Amin, former Joint Director, Chief of Protocol, Election Commission of India. आदरणीय सर, हम आपका स्वागत करते हैं आज के इस पाइस टॉक के 9वें एपिसोड में। We also welcome a valued member of our school administration, Bharatiya Vidya Bhavan, Middle East, our respected head mistress, Vanitha Walter madam. इसी के साथ हमारे साथ जुड़े ऑनलाइन दर्शक जो कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे, उन सब का हम स्वागत करते हैं। Welcome to Pious Talk, June 2023. आज हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर मोहम्मद आमीन जी। आपका अधिक परिचय कुछ इस तरह है। Dr. Mohammed Amin was the Joint Director, Chief of Protocol in the Election Commission of India. He was the General Manager, Corporate Affairs in Nayati Healthcare and Research Private Limited, Deputy General Manager, Public Relations in Airports Authority of India, Ministry of Civil Aviation, Government of India. He was also the APS and OSD to several union ministers in 12 ministries, from the Ministry of Civil Aviation in the BJP government to the Ministry of Agriculture. Dr. Mohammed Amin has taken up foreign deputations, especially in Saudi Arabia, for Hajj affairs and a coordinator in the Indian Consulate Jeddah, Mecca and Medina. He has life memberships of several reputed institutes such as Civil Services Officers Institute, Press Club of India, National Rifle Association of India, India Islamic Cultural Center, Airport Authority of India Officers Institute, the Indian Golf Union, and Mohammed Bagh Club, Lucknow. These associations have strengthened his management capabilities and experience. He is well traveled in India and abroad in view of his association with VVIPs, including the Vice President of India. He has diverse experiences and is proficient in understanding these diversities as they are a part of his career and expertise. Sir, इस अनुभवी व प्रेरक परिचय के साथ ही हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। साथ ही आमंत्रित करते हैं हमारे आज के विद्यार्थी प्रतिनिधियों को। हमारे आज के विद्यार्थी प्रतिनिधि हैं मोहम्मद साद, अंजना प्रसाद, श्रीलक्ष्मी और तलिता जैन, कक्षा 10वीं से। We welcome our delegates to this 9th episode of Pious Talk. And the topic for the session is Opportunities and Drawbacks, Democracy in the 21st Century. अतिथि, कार्यक्रम अध्यक्ष और विषय हमारे सम्मुख हैं। आइए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। Sir, with your permission, may we begin? Yes. आज 21वीं शताब्दी में लोकतंत्र की भूमिका और इसका महत्व किसी से छिपा नहीं है। लोकतंत्र की मजबूती निरंतर प्रयास होते रहते हैं। जनता के लिए, जनता द्वारा की संकल्पना को साकार कर विकास के लक्ष्य पर आगे बढ़ना ही लोकतंत्र का मुख्य लक्ष्य होता है। इस लोकतंत्र की संभावनाएं और चुनौतियों पर चर्चा हेतु हमारा यहाँ उपस्थित हैं। इसे और स्पष्टता के साथ समझने हेतु पहले सवाल के साथ आमंत्रित करते हैं अंजना प्रसाद को। Good morning, sir. I'm Anjana, and my question to you is, what are your notable observations on the evolution of the election process since independence? The voice is not clear, please. Sir, what are your notable observations on the evolution of the election process since Indian independence? Actually, just trying to tell you about this democracy, about the election process, या हमारे यहाँ चुनाव की बात जो होती है, उसमें हम एक बात कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज ए पॉलिटिकल सिस्टम हैज बीन वाइडली across the world
promising quality, freedom, and we can say the world the largest. India is the world largest democracy stand in all over the world. Explore the various facts and democratic governance. If we have some points about that, without the freedom of the expression and speech, if we have the democratic country, and with the regular elections facilitating peaceful transmission of the powers and protection of the fundamental rights, and the vibrant civil society and the media and rule of law, with the independence of the judiciary, ensuring the justice to all, and constitutional provision for the social justice, and the growing of the technology in governance and transparency efficiency for the citizens engagement. हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक राजनीतिक तंत्र के रूप में है जो विश्व भर में व्यापक रूप से किया गया है अपने नागरिकों के लिए, जिसमें स्वतंत्रता है और प्रतिनिधित्व की गारंटी दी गई है। 21वीं शताब्दी की चुनौतियां और जटिलताओं के लोकतंत्र में कार्यान्वयन के अवसर पर और हानियों के साथ लाए हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत विभिन्न पहलुओं की खोज के लिए रोचक अध्ययन के रूप में खड़ा है। आप इसके बारे में देखेंगे कि कुछ 21वीं शताब्दी के लोकतंत्र की अवसर और खामियां क्या हैं। इसमें विचार और भाषण की स्वतंत्रता है और नागरिकों की अपनी राय रखने के लिए सार्वजनिक वार्ता में भाग लेने की सुविधा प्रदान करती है। नियमित चुनाव और शांतिपूर्ण शक्ति के संक्रमण को सुनिश्चित करते हैं और नागरिकों को राष्ट्र के भविष्य के आकार देने की संधि देते हैं। भौतिक अधिकारों, स्वतंत्रताओं और संरक्षा नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ भी संरचना प्रदान करती है। आप देखेंगे इस मामले में कि जो कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं समाज के अंदर और डेमोक्रेसी के अंदर, तो फायदे भी हैं और उनके नुकसान भी है, लेकिन उसके साथ में ही फायदों में आता है जीवन, नागरिक, समाज और मीडिया विविध आवाजों के लिए एक मंच प्रदान करते हैं जिसमें जवाबदेही को बढ़ावा होता है। कानून का शासन एक स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा न्याय सुरक्षित करता है और लोकतंत्र के सिद्धांतों को पालता है। सामाजिक न्याय के लिए संविधान प्रावधान ऐतिहासिक भेदभाव को समाप्त करने और समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य रखता है। शासन में तकनीक का उपयोग होता है, पारदर्शिता है, कुशलता है, नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा भी देता है, जिसमें सभी लोग मिलकर चुनाव के लिए जाते हैं और अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ आप देखेंगे, लेकिन इसके साथ बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी जिसमें कि जो निगेटिविटी पाई जाती है। जैसे कि आप देखेंगे कि इस मामले में आप लोग देखेंगे कि सामाजिक आर्थिक असमानता है, क्षेत्रीय असमानता है, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी बढ़ जाती है, राजनीति में धन के प्रभाव का भी इस्तेमाल करते हैं लोग, संस्थाओं की गुंडागर्दी बढ़ जाती है, यहाँ तक आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग ऊपर आ जाते हैं। धर्म, जाति, क्षेत्रवाद आधारित विभाजित राजनीति होती है। आप देखेंगे अप्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि क्या है कि जब पॉलिटिकल सिस्टम आ जाता है तो उसमें फेवरिज्म की बात आ जाती है और लोग उससे दबाव महसूस करते हैं अधिकारियों के ऊपर भी। राजनीतिक सहमति की कमी और ठप हो जाती है, राजमंडल का दुरुपयोग होता है, राजनीतिक लाभों के लिए ये लोग अपने काम करते हैं, जिसमें कि निष्पक्षता और न्याय को संकट में डाल देता है। मतदान और उदासी होती है। आप देख लीजिए, अभी आपके सामने एक उदाहरण है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। वहां पर क्या है, नाम की मात्र की है, वहां पर जो डेमोक्रेसी है वो उसको कौन चला रहा है, उसको सेना चला रही है। इस कारण वह डेमोक्रेसी रही नहीं है। हमारे देश में आप देखेंगे कि हमारे देश में समय से चुनाव होते हैं, एक टाइम फ्रेम है 5 साल का, उसमें चुनाव होते हैं। उन चुनाव के साथ जो भी हमारे प्रतिनिधि चुनते हैं, जो लीडर जो होता है उसमें पार्टी का, वो हमारे देश का प्रधानमंत्री बनता है। इसी तरह स्टेट्स वाइज है हमारे यहाँ, जो कि चीफ मिनिस्टर बनते हैं, एमएलए बनते हैं असेंबली से। तो एक बहुत अच्छी न्याय व्यवस्था भी हमारे यहाँ देखने को मिल रही है और आज हमारा देश दुनिया में सबसे नंबर 1 पर डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबसे ज्यादा विशालकाय देश है। इसमें जब कभी भी आपने देखा होगा, मैं अभी कल की डिबेट में बता भी रहा था कि हमारे देश के जो चुनाव है वो निष्पक्ष हैं। हमारे यहाँ किसी तरह की वो बेईमानी नहीं की जाती। अब तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का शुरू से इस्तेमाल चल रहा है, 1 दशक से ऊपर हो गया। और इसमें अब तो ये भी था कि लोग पहले कहते थे कि हमने वोट डाला है, हमने कहाँ डाला है, कहाँ नहीं डाला, मुझे नहीं पता चलता था। लेकिन उसमें क्या हुआ कि ईवीएम के साथ में एक वीवीपैट मशीन लगा दी गई, जिस तरह की आप लोग कैलकुलेटर भी देखते हैं और स्मार्ट कार्ड यूज करते हैं किसी के लिए, उसमें एक पर्ची आती है, एक स्लिप निकलती है,
स्लिप से आपको पता लग जाता है कि आपने कितना पैसा निकाला, कितने बजे निकाला, किस बैंक से निकाला, और डेट भी आ जाती है। इसी तरीके से आप वीवीपैट मशीन में देखेंगे कि जब भी वोट डालते हैं लोग, तो वोट डालने के समय उनका प्लेस ऑफ पोलिंग स्टेशन, उनका पोलिंग स्टेशन का नाम, टाइम, और किस कैंडिडेट को कितने बज के कितने मिनट पर बटन पुश किया है, वो भी आ जाता है। इसलिए बिल्कुल हमारे यहाँ निष्पक्ष चुनाव होता है। निष्पक्ष चुनाव की वजह से देखिए हमारे यहाँ कितनी स्वतंत्रता है, और हम दुनिया में नंबर 1 पे जाने जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दुनिया का बेस्ट कमीशन है। आप देखिए कि हम लोग यहाँ से दूसरी जगह भी चुनाव कराने जाते हैं, चाहे वो मालदीव हो, चाहे वो नेपाल हो, यहाँ हम अपनी मशीनें भी भेजते हैं, आसपास कंट्रीज में, बांग्लादेश में भी, और साउथ एशियन कंट्रीज में भी। आप देखेंगे कि जो साउथ अफ्रीका है, वहाँ के कंट्रीज को भी हम लोग मशीनें देते हैं, और वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं। हमारे यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है हमारा इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक कंट्रीज को देता है पूरी ट्रेनिंग, और वहाँ पर हमारे जो लोग हैं उनको सिखाते हैं। बल्कि जब चुनाव हमारे यहाँ देश में हो रहे होते हैं, तो अगर उनके डेलीगेशंस आते हैं, उनके कमिश्नर्स आते हैं, उनके ऑफिसर्स आते हैं, तो उनको तो थ्योरिटी पढ़ाते पढ़ाते हैं, फिर प्रैक्टिकली भी उनको जहाँ चुनाव हो रहा होता है हमारे यहाँ, चाहे वो बाई इलेक्शन हो, चाहे स्टेट के इलेक्शन हो, या पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, उन डेलीगेशंस को ले जाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से हमारे यहाँ ये व्यवस्था है, और इस व्यवस्था को देख के बड़े खुश होते हैं। और देख लीजिए, अभी मैं यही कल ही बात कर रहा था कि हमारे अमेरिका में भी आपने देखा होगा कि जब ये भी बाइडेन का चुनाव हुआ था, तो उस वक्त ट्रम्प ने कितनी उधमादी मचाई थी, और कितनी हुआ क्राइम मचा था, ये यहाँ बेईमानी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की कभी व्यवस्था नहीं रही। हमारे यहाँ हमेशा एक अच्छा चुनाव, जो साफ सुथरा चुनाव देखने को मिलता है, चाहे वो बर्फ के एरिया में हो, चाहे वो समंदर साइड में हो, आइलैंड्स के अंदर हो, चाहे वो पहाड़ों पे हो, हर जगह एक तरह से हमारी पोलिंग पार्टियां जाती हैं, और टाइमली उनका एक सेट टाइम है। उस टाइम में वोटिंग होती है स्टार्ट, और क्लोजिंग करके मशीनें लॉक करके और स्ट्रांग रूम में रख दी जाती हैं। फिर जब चुनाव होता, काउंटिंग की डेट होती है, काउंटिंग होती है, उसके बाद उसका रिजल्ट आता है। जो भी रिजल्ट होता है उनके स्टेट के गवर्नर्स को जाता है, और राष्ट्रपति जी को सबमिट दिया जाता है लिस्ट। उसके बाद उनका नोटिफिकेशन होता है, तो कोई तो मुख्यमंत्री बनता है और फिर देश का प्रधानमंत्री बनता है। इस बारे में आप लोगों को आगे क्या कहना है बताइए मुझे। व्हाट यू वांट टू से एनीथिंग अबाउट दैट? एनी क्वेश्चन? Thank you, sir. Moving on, we would like to invite Sreelakshmi for the next question. नमस्ते सर, मेरी सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि उम्मीदवार चुनाव प्रचार पर बहुत अधिक पैसा खर्च करते हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे यहाँ जो लिमिट है वो इलेक्शन कमीशन ने फिक्स की हुई है कि असेंबली के लिए कितना खर्चा करना है, और पार्लियामेंट की सीट के लिए जो चुनाव होगा उसमें कितना खर्च करना है। ये लिमिट उनको बता दी जाती है, और बताने के बाद, और हमारे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, वो वहाँ पर रहते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं कि इलेक्शन में कितना खर्चा हुआ और कितना कहाँ पर क्या खर्च हो रहा है। वो पूरे चुनाव के दौरान, असेंबली और पार्लियामेंट के दौरान, वो एक पूरा डेडिकेटेड ऑफिसर होता है रेवेन्यू सर्विस का। वो पूरी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमता है, देखता है, फोटोग्राफी करता है, और करवाने के बाद उसका असेसमेंट करके वो देखा जाता है कि इसने कितना खर्चा किया है। अगर जरूरत से ज्यादा खर्च किया है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जीतने के बाद भी अगर हमारे ऑब्जर्वर ने, जो हमारा ऑब्जर्वर है रेवेन्यू का, उसने अगर सबमिट किया रिपोर्ट अपनी कि इसका पैसा इससे ज्यादा खर्च हुआ है, तो जीतने के बाद भी वो हारा हुआ डिक्लेयर किया जाता है, जीता हुआ नहीं होगा अगर उसने पैसे लिमिट से ज्यादा खर्च किए। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब अगले सवाल के साथ ही आमंत्रित हैं मोहम्मद साद। नमस्ते सर, मेरा नाम है मोहम्मद साद और मेरा पहला सवाल है, 21वीं सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के विकास ने लोकतंत्र के अवसरों और कमियों पर कैसा प्रभाव डाला है? देखिए, जो आप बात कर रही है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इससे हमारे, आप देखेंगी सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले हमारे यहाँ चुनाव के लिए जो वोटर रजिस्ट्रेशन होता था, उसमें लगता था कि आदमी, मैं मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो यूपी और अदर स्टेट में भी वो लोग अपना वोटर रजिस्ट्रेशन रजिस्टर करा देते थे। उसके बाद क्या होता था कि जब हमारे यहाँ दिल्ली में चुनाव होते थे तो दिल्ली में वोट डालता था, अगर यूपी में चुनाव है तो उसका वोटर आई कार्ड बना हुआ है, वहाँ जाके वोट डालता था।
या किसी जिस स्टेट का है वहां डालता था। यानी उसके पास डबल वोट डालने का रहता था। लेकिन इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इतना सर्च हुआ है कि हमारे यहाँ क्या है कि ऑटोमेटिकली उसका दोनों जगह से डिलीट हो जाएगा, जिस जगह से वोटर बना है और जिस जगह वोट डालने जा रहा है। इसलिए क्या होता है कि और टाइम टू टाइम हमारे यहाँ इन वोटर्स का सर्वे भी होता है, जो हमारे बीएलओस करते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स, वो भी रिपोर्ट करते रहते हैं कि ये पर्सन वोटर यहाँ पे रहता है या नहीं रहता। तो वो अगर डालते हैं वोट तो वहां पर वो पकड़े भी जाते हैं। यानी हम इससे क्या हुआ है कि हमारे यहाँ जो वोट है वो उसका एक ही जगह रजिस्टर हो पाएगा। अभी लेटेस्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हमारे इलेक्शन कमीशन को अप्रूवल दी है, उसमें आता है आपका कि आधार कार्ड हमारे यहाँ जो है, आधार कार्ड से वोटर कार्ड रजिस्टर किया गया है। तो उसको कलेक्ट करने के कारण भी हमारे यहाँ जो है अब डुअल वोट डालने की पॉलिसी खत्म हो जाएगी। एक सिंगल राइट होगा, एक एक वोटर होगा और उसका एक राइट होगा, और दूसरी जगह वोट नहीं डाल पाएगा। और आप लोग परेशान ना हो, विदेशों में भी जो हमारे लोग रह रहे हैं, हमारे एनआरआईज रह रहे हैं या उनका वोट डालना चाहते हैं, उसकी भी प्रोसेस स्टार्ट है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर वो विदेशों में रह रहे हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, अगर वो गए वहाँ पर किसी काम करने के लिए, कुछ करने के लिए, और अपने वोट का राइट चाहते हैं, उस रोड को भी कोशिश की जा रही है कि उनका वोट भी हम लोग ले सकें अपने देश के लिए। क्योंकि वोट एक वोट हमारे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कंट्री में डेवलपमेंट के लिए, जी, प्रोग्रेस के लिए। धन्यवाद। Next, I would like to invite Talitha for her question. Good morning, sir. So my वेरी गुड question, मॉर्निंग। प्लीज how do we लाउड foster प्लीज। how do we foster the power of social media to bring to the forefront the voices of marginalized and disadvantaged people while using social media, the new technologies, to enhance the democratic process? Just I'm going to tell you about the social media. Social media, we have the observers, information service observers we have. They are monitoring the social media also at the time of the. We actually, this is very clear. I'm going to tell you, election when election start or announces, when we have the control of the over the constitution. The constitution has given the power, and we have to start the election. Then we have to power, means election commission has the power to observe the things, to control the things, and penalize the things. That's why at that time we can do everything. Otherwise, after the vote, and after the election is over, we don't have any power to interfere in the government policies. So it's a role of the government to control the media, positive or the negative as they want. But in case when the election is start, election process is on, so election commission observers can see and they can penalize them if they are doing the wrong things. But we think about that, and the progress is on to control how we can control the social media to negativity about the country or the state or their constitution, trying to do the best ever. But the latest is I was telling that about the social media is very advanced now, and how we can control it. The progress is on. So how to control it? धन्यवाद सर। हम दर्शकों से भी अनुरोध करते हैं कि आप अपने सवालों के साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और विश्व की बड़ी आबादी वाला देश भी है। किसी भी देश के सम्मुख उसकी आबादी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। कहीं ना कहीं देश
इसे समझने हेतु हम अब बुलाते हैं अंजना प्रसाद को। सर, मेरा अगला सवाल है, भारत में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि इसके लिए क्या कदम उठाने जाना चाहिए। आपको मैं इंश्योर कर दूं, इसके लिए जो हमारी जो टीम है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन की टीम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, वो क्या करते हैं कि लोगों को एजुकेट करने के लिए बहुत बड़े एडवर्टीजमेंट दिए जाते हैं, रेडियो पे जिंगल दिए जाते हैं, टीवी पे ऐड दिए जाते हैं। और बल्कि हम लोगों ने ये कोशिश शुरुआत की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि जो बच्चे हमारे 18 एज कर लेते हैं कंप्लीट, उनको स्कूल के अंदर ही उनका वोटर रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए और उनको जो है वोटर आई कार्ड दे दिया जाए, जिससे कि वो बड़े उत्साहित होते हैं और वो अच्छी वोटिंग परसेंटेज में बढ़ावा देते हैं। रही बात यह कि लोगों को ये कहा जाता है, हॉलीडे भी दिया जाता है, लेबर्स को मना कर दिया जाता है कि उनसे कोई काम न लिया जाए, और कोशिश ये की जाती है कि सारी फैक्ट्रीज बंद कर दी जाए, जो संस्थान है जो बंद हो सकते हैं उनको कर दिया जाए, और हर तरीके से उनको कहा जाता है कि वोटर का आपका राइट है, आपका अधिकार है, आपको सरकार चुनने की आज़ादी है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप वोट करेंगे, उतने ज़्यादा कंट्री में आपको फायदा होगा और कंट्री प्रोग्रेस करेगा। इसलिए मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि चाहे वो रेगिस्तान राजस्थान में हो, चाहे हाई टेम्परेचर पे हो, चाहे लो टेम्परेचर में आपका कश्मीर हो, हर प्रांतों में, और चाहे आइलैंड्स में, हमारे यहाँ जो लक्षद्वीप, जो समंदर के अंदर है, लक्षद्वीप है, पोर्ट ब्लेयर है, वहाँ भी चुनाव के लिए सही टाइम पर, प्रॉपर टाइम पे हमारी पोलिंग टीमें पहुँचती हैं और वहाँ पर पूरा उनको इंडिपेंडेंस है कि वहाँ पर वोट दें, और कोशिश ये की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों को आकर्षित किया जाए और वोट डालने के लिए किया जाए। मैं तो इस बात के लिए कहूँगा कि जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके मिलने वाले हैं, आपके यार दोस्त हैं, उनको भी ये कहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट में पार्टिसिपेशन में भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट किया मतदान करें। और आपको खुशी होगी कि हमारे यहाँ जो है अब 84% तक मतदान पहुँच चुका है। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि 100% कोशिश की जाती है कि वहाँ पर मतदान हो। लेकिन लोगों में उदासीनता है, पता नहीं किस बात की, मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर उत्साहित होंगे, बल्कि हम लोग जो वोटर हैं, हम लोग आदर्श, यानी कहते हैं मॉडल मॉडल पोलिंग स्टेशन भी बनाते हैं। वहाँ पे जैसे घर की लेडीज़ हैं, वो भी अपने बच्चों को ले आती हैं, बच्चों को छोड़ देती हैं, वहाँ पे छोटा-सा प्ले स्टेशन बना देते हैं। वहाँ पे जो एजेड लोग हैं, उनको व्हील चेयर देते हैं। अब यहाँ तक कर दिया गया है कि जो हमारे वोटर्स बहुत ज़्यादा एज के हैं, वो नहीं आ सकते हैं, उनके घर पोलिंग पार्टी जाती है, वो उनसे वोट लेके आती है। और इससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ क्या इलेक्शन कमीशन दे सकता है कि वहाँ पर डॉक्टर्स की भी सुविधा होती है, डॉक्टर्स भी वहाँ पे मौजूद होते हैं पोलिंग स्टेशन पे, कि किसी तरह किसी पेशेंट को कोई तकलीफ हो तो उसका देख-रेख किया जाए, इलाज किया जाए। और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि वहाँ पे जलपान तक की व्यवस्था की जाती है, सजाया जाता है, पानी की व्यवस्था है, मेडिसिन की व्यवस्था है और व्हीलचेयर की व्यवस्था है। अब अगर लोग नहीं देते हैं, तो इसके लिए मैं तो यही जनता से सहयोग की अपील करता हूँ, आप जैसे विद्यार्थियों से अपील करता हूँ कि वो अपनी इस बात को जागरूकता से चारों तरफ बढ़ाएँ, बताएँ, समझाएँ लोगों को कि अपने वोटर का राइट का इस्तेमाल करना चाहिए। देश के नागरिक हैं और नागरिकों को चाहिए कि इलेक्शन कमीशन से यही उम्मीद करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। किसी तरह की कोई परेशानी है तो हमारे 24 आवर कंट्रोल रूम खुले होते हैं जब चुनाव होता है, वो संपर्क कर सकते हैं, उनके नंबर दिए जाते हैं, मीडिया को सबको बताया जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा जनता का सहयोग चाहिए, आप लोगों का चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान की प्रतिशतता बढ़ सके।
Thank you, sir. Next, I invite Sreelakshmi to ask her question. Sir, in your opinion, if there was one aspect of our government you could change, what would it be and why? Can you repeat the question loud, please? So, Little bit louder. in your opinion, if there was one aspect of the government you could change, what would it be and why? No, actually, it depends on the people. Election Commission has no role. Just Election Commission can go for the elections, and whatever the popularity or the government has done it for the people can elect their candidates, and the majority comes, they become the Prime Minister of India. It depends on the public. It's not hand of the Election Commission. Election Commission never interfere in for the selection of the people. Election Commission go for the elections and clear cut, clear, still clear cut, and this is constitutional body. They can provide the assets to voters to they come and vote, and what they choose, that is the priority of the public. The public can directly choose the candidates, bad or good. It depends on the public. We always educate, they can go for the right. Yeah. Thank you, sir. अगले सवाल के साथ आमंत्रित है तलिता। So, for my question, as we live in the 21st century, what is the problem we face as a country that follows democracy that might, in the end, be fatal to our country? What problem you? What you? Again, you can repeat your question, please. Yes, sir. As we live in the 21st century, what are the main problems we face as a country that follows democracy? And would any of the problems prove fatal in the end? No, actually, our country is in a progress, and the modern country means we can say modern India. We are building the modern India, so a lot of the problems sometimes comes. But I am sure that the in 21st century we are going to the forward, and the country is going to high. Like the Prime Minister's speech, you can listen in U.S. Senate. He was telling that our country is having the number five in the world, but very soon we are going to achieve the third position in the world. Means after the US, China, and the India will be the next in the queue. One, two, three. Means within three we will be there very soon in our respect. सर, मेरा दूसरा सवाल है, 21वीं सदी में मानवाधिकारों की सुरक्षा की पुष्टि कैसे कर सकते हैं? So, we have the Human Rights Commission and in state commissions also. So they are looking about the human control. How to that is the part of the Human Rights Commission to control the things in states and the center. This is not controlled by the Election Commission of India. That is different authority, constitutional authority. That is the Human Rights Commission. सर, लोकतंत्र में प्रसार माध्यम को चौथा आधा स्तंभ कहा जाता है।
लेकिन क्या आज प्रसार माध्यम अपनी सही भूमिका निभा पा रहा है? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि प्रसार माध्यम का जहाँ तक सवाल है, तो ये एक हमारे कंट्री में नहीं है, पूरे विश्व की बात है। और जहाँ तक सवाल है कि प्रसार माध्यमों का, तो प्रसार माध्यम में हमने पहले भी कहा था कि हमारे जो ऑब्जर्वर हैं, वो इलेक्शन के टाइम कंट्रोल करते हैं। सिर्फ इलेक्शन के टाइम ही हमारे अधिकार क्षेत्र आते हैं। इलेक्शन के बाद और उसके पहले का हमारे पास नहीं होता कोई अधिकार। तो ये जो देखने को मिलता है कि मीडिया इसको हमारा तीसरा स्तंभ होता है, और हम प्रसार माध्यमों से यही आशा करते हैं, इलेक्शन कमीशन, कि जब भी कोई चुनाव हो, उसमें जो भी कोई वो लेखन टिप्पणी या अपने वीडियोस भेजते हैं, उस पे इलेक्शन कमीशन अपने कॉग्निजेंस लेता है और उन पे एक्शन लेता है अगर वो गलत किए जा रहे हैं। लेकिन हमारा यही कहना है, अनुरोध है कि जो प्रसार माध्यम है, वो हमेशा देश की पॉजिटिविटी को दिखाना चाहिए, देश हित में बात करनी चाहिए, और तो वही इनके लिए उचित होगा। वरना देश में अराजकता बढ़ेगी, और इस तरह की बातें उन प्रसार माध्यमों को नहीं आना चाहिए जो अनवांटेड हैं। उन्हीं को करना चाहिए जो देश हित की हो, और उसमें एक देश के लिए जो हमारा मॉडर्न इंडिया है, बढ़ रहा है और डेवलप कर रहा है, उसमें उनका बहुत बड़ा सहयोग माना जाएगा। थैंक यू सर, सर। आज की हाँ मोहम्मद साद, अपना प्रश्न पूछिए। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि अभिव्यक्ति की आजादी लोकतंत्र के लिए घातक बनती जा रही है। इस पर आपका क्या सुझाव है? अब लोकतंत्र की अभिव्यक्ति, मैं इस बारे में क्या कहूँगा, इसके लिए तो लोगों को अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है कि, लेकिन जहाँ तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, वो अपने स्तर पे कर रहा है, हर एक को जागरूक करता है, हर एक को बताता है, उनके अधिकार बताता है, उनके लिए पूरा सपोर्ट करता है। लेकिन अब ये तो आपको देखना है, समाज को देखना है, और जो आप जैसे युवा अब आ रहे हैं देश में और अपनी स्थान प्राप्त कर रहे हैं, उच्च स्थान धीरे धीरे, अभी स्टूडेंट हैं, इसके बाद आप एडल्ट हायर एजुकेशन में जाएंगे, तो आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा कंट्री के लिए, कि आप लोग उसके लिए लोकतंत्र को मजबूत करने की सोच रखें, अपने परिवारों से कहें, अपने मिलने वालों से कहें, और पॉजिटिविटी रखें कंट्री के लिए, जो देश के लिए, समृद्धि के लिए और विशाल देश को आगे ले जाने के लिए आपका सहयोग सराहनीय होगा। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। एक पूर्व अधिकारी, एक समाज सेवक, एक जागरूक व्यक्ति ही संवेदनशीलता के साथ ही व्यवहारिक बातों को भी बड़ी सरलता के साथ प्रस्तुत कर सकता है। इसे हमने आज समझा डॉक्टर आमीन जी के साथ बातचीत करके। अब आदरणीय सर, आपसे अनुरोध है कि आप इस विषय के साथ ही इस कार्यक्रम पर भी अपना विचार प्रस्तुत करते हुए हमारा मार्गदर्शन कीजिए। एक बहुत अच्छी सोच है, एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है, और ये हमारे बच्चों को, या जो हमारे देश का भविष्य है, इन बच्चों को अगर जागरूकता दी जाएगी और हम लोगों से इंटरेक्शन कराया जाएगा समय समय पर, तो उन बच्चों को अपने अधिकारों का, अपने लिए क्या उनके अधिकार हैं, क्या उनकी मान्यताएं हैं, ये सब उन तक आएंगी, और वो समझ पाएंगे देश को, और देश की अपने कानून को समझ पाएंगे, और अपने हितों की रक्षा कर पाएंगे। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आपके भविष्य की कामना करता हूँ कि आप लोग भविष्य में एक अच्छे, जागरूक और देश के लिए आगे बढ़ें और करें काम को। और आपसे यही आशा की जाती है कि भविष्य में आगे जब जाएंगे आप लोग, तो देश के लिए, और सबसे पहले देश के लिए और फिर अपने लिए कुछ कर सकेंगे, जिससे देश का भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा, आपके परिवार का भी नाम होगा। इन्हीं आशाओं के साथ धन्यवाद। Thank you, sir, for sharing your valuable time and experiences with us. As we come to the end of the ninth episode of Pice Talk, I would like to invite our respected headmistress, Vanitha Walter, madam, to share a few words. Thank you, children. Thank you, Dr. Amin sir, for spending your valuable time. Children, you must be so gifted
for interacting with such a prominent leader. His speech, and for every questions that he asked, he had so much of patience. It showed his patriotism, it shows his dedication, it shows his professionalism. And when he spoke about the opportunities and drawbacks of the democracy in 21st century, he spoke about the evolution of election process. As he had asked, what is the process that has happened from the time of independence? He was so clear in stating that, we all know that India is the largest democratic country in the world. And he spoke about the freedom, he spoke about the rights, duties, the freedom of speech, the transparency that the election commission has got without any malpractices. He spoke about the equality, he spoke about the protection of the citizens without any discrimination. And he said also that election is very disciplined in our country. And just imagine our election machines are being sent to our neighboring countries. That means you should understand how much reliable the election commission is. And when he was questioned about the expenditure, he spoke about the observer, that he also had sent that if you are spending more than what is quoted there, and how you will be declared as a loser, not a winner. And when questions were asked about the social media, I really hats off, sir. It is so inspiration for the youngsters of today, that everything was black and white that you spoke, how things are controlled, how things are prioritized, the role of the government to control the media, how it is controlled, and how to control the negativity, and how the election commission reaches to the old people, how it reaches the polling booth, reaches the home, how it takes care of the women with the children, and what steps to be taken, the education, the advertising, and the holiday given for the sake of reliable election that takes place. And he spoke about how country is progressing. Then he also said about change in the government, as what is the aspect of it, and the common role. It spoke about the freedom of a citizen, how things are being, we have to invest on education, and how problems are faced. And he said that, spoke about modern India, which is moving forward, spoke about the human rights. Sir, thank you, thank you, thank you very much. And our children are really gifted to share this platform with you. And also, I'm so proud that even me too sharing this platform and to listen everything on live. Thank you, Thank you sir. very much. थैंक यू मैम। आज टॉक विचारों का मंथन है, ऐसा मंथन जहां से भावी पीढ़ी के विचारों को उचित दिशा और सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। और आज इसी उद्देश्य के साथ ही डॉक्टर आमीन सर हमारे बीच उपस्थित रहे। सर, हम आपका भारतीय विद्या भवन आबू धाबी की तरफ से विशेष आभार प्रकट करते हैं। आपने अपना कीमती समय हमें देकर हम सभी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया और अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया। इस हेतु हम आपके खूब आभारी हैं। भविष्य में भी आपका साथ व मार्गदर्शन इसी तरह प्राप्त होगा, हम आपसे यह कामना करते हैं। We are deeply indebted. मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं दिल्ली भारतीय विद्या भवन का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। I was the mass communication student of Bharatiya Vidya Bhavan, Delhi. Children, this really needs a huge round of applause. I did my mass communication from the Bharatiya Vidya Bhavan, Delhi. We are deeply indebted to the management of Bharatiya Vidya Bhavan, Middle East, for providing us with this platform to express ourselves even as we interact with experts in the field. We also And one more thing I want to tell you. One more thing I want to tell you. And the 12th January, 12th May, last 12th May, I was in the London. So I have the program in Bharatiya Vidya Bhavan, cultural program. There is big hall there. And in 2014, along with my family members, I was stay there. They have the rest house also in the Bharatiya Vidya Bhavan in central London. So there is a big house in Bharatiya Vidya Bhavan. So I have got the accommodation there. This time I have gone for the cultural program
in the from the embassy side. So really, we have the proud about the Bharati Vidya Bhavan, and I'm, as you know, I told you just now that I'm a student of uh, mass communication in Bharati Vidya Bhavan, Delhi. So I'm really proud to talk to you in Bharati Vidya Bhavan students. You are associated with that. Thank you, sir. We also thank our school principal, Mr. Suresh Balakrishnan, vice principals, and assistant vice principals for always being very supportive. We extend our gratitude to the members of admin staff and ICT team. It is the support of the team PIES that we can successfully present these sessions of PIES Talk. Thank you all, and until next time, this is Akshita. And this is Aditi signing off. अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें. धन्यवाद.